Hi everyone and welcome back to my channel The Literary Lounge again. So today I have brought for you a walkthrough video of your chapter We Are Not Afraid to Die If We Can Still Be Together from your book Hornbill Class 11 CBSE. So this story which we are going to discuss today, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. This is autobiographical in nature, right? And you know, it speaks about the adventures of a family which is out on a voyage in the Indian Ocean. The story is an encounter described, by the author and which he experienced while taking the voyage. तो एक ऑथर ने फर्स्ट हैंड अकाउंट दिया है कैसे वॉयज में उन्हें प्रॉब्लम हुई, हाउ दे ऑलमोस्ट डाइड, उसी का डिस्क्रिप्शन इस स्टोरी में दिया गया है. एंड हाउ देयर चिल्ड्रन हु आर वेरी स्मॉल, हाउ दे स्टूड बाय देम, कैसे उन बच्चों ने उन्हें सिखाया कि हाउ टू शो करेज इन द फेस ऑफ डेंजर, राइट. दिस वाज अ ग्रेट lesson for the family members. You will witness, a stream of unfortunate events that lead to a disaster for this family, right? Living its dream of sailing. तो बहुत ही इसमें ऐसे भी पॉइंट्स आएंगे, इंस्टेंसेस जहां काफी दुख होगा. देयर आर वेरी सैड इंस्टेंसेस व्हेन स्पेशली व्हेन द लिटिल गर्ल इज हिट ऑन द हेड एंड शी डेवलप्स अ क्लॉट बिटवीन द आई एंड द ब्रेन, राइट, एंड विच आफ्टरवर्ड्स नीडेड लाइक 6 or 7 सर्जरीज टू रिमूव द क्लॉट. तो इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा सॉरी ट्रेजिक इंसिडेंट होता है, सुन के बहुत अजीब लगता है, बट देन इट इज अ रियल स्टोरी. द स्टोरी ब्रिंग्स मेनी इमोशंस which are going to help you understand the importance of bonding in a family. जैसे हमने लास्ट अपना जो चैप्टर था मदर्स डे, उसमें फैमिली बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था कि अगर एक भी मेंबर को सही से ट्रीट ना किया जाए तो क्या होता है, फैमिली बिखर जाती है. ठीक, सो बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. एंड यू विल सी हियर इन दिस स्टोरी हाउ ईच मेंबर ऑफ द फैमिली, राइट, perseveres, right, to survive this deadly circumstance, this deadly situation. Now, all the characters in this story, they are extremely brave, right? All the characters, and they are in love with each other immensely. All of them. The father, the daughter, right? The son and the mother, the wife of the narrator. They are in love with each other. And this surprise package, right, is the surprise package is, the kids who show great courage in such a difficult time and give moral support to their father who is actually struggling a lot. Why? Because he is not afraid he is going to die. He is afraid his kids are going to die, right? और obviously बच्चों को अपने सब प्यार करते हैं, right? And he is struggling to save everyone on board that ship, Wave Walker, right? The story represents how courage can help you to overcome any situation, no matter in which problem you are in. If you can face it, if you are courageous enough, you can come out of it, okay, right? It also beautifully highlights the struggle of each member of the family and then the combined efforts of all the members, even the 2 crew members, Larry Vigil and Herb Siegler. One is Swedish, the other one is American, right? All these characters, how they are surviving each other to get from this catastrophic event. And then the story also portrays the struggle of a father determined to save his family, right? And leaves no stone unturned to bring the situation under control. तो जो ऑथर है उसने हर कोशिश कर ली, भरपूर कोशिश कर ली कि अपनी फैमिली को बचाना है, किसी को मरने नहीं देना है, कम वॉट में चाहे अपनी जान चली जाए, बट ही हैज टू सेव हिज फैमिली. इट ऑल्सो ब्रिंग्स द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ईच कैरेक्टर टू फाइट दिस सिचुएशन. सबने अपने अपने एंड से काम किया है इसमें. The little boy Jonathan, he exhibits a great deal of courage, right? And is also ready to die if all these family members are together. And that is why the title of the story, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. This is what Jonathan said to his father, कि अगर हम सब साथ हैं तो हम मरेंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गल नहीं है. I am not afraid to die if we all of us are together, right? एक इतना छोटा बच्चा इतनी मेच्योर बात कह रहा है. This is a sort of a miracle, right? Okay. Now, all that matters is that they are together. Unity. Ekta. The young girl Suzanne is seriously injured, like I told earlier, but chooses not to bother her father, who is struggling to save everyone. Now, this entire story, it revolves around the family and their positive attitude, which ultimately saves everyone. The whole family stands together and fights the situation with an indomitable spirit. Indomitable, which cannot be defeated. तो उन्होंने सोच लिया था कि हम हार नहीं मानेंगे, हमें कैसे भी करके इससे बाहर निकलना है, चाहे उसमें वो मरी जाते. बट वॉट मेड देम इमर्ज विक्टोरियस वॉज देयर करेज. उनकी जो हिम्मत थी, इस सब होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी. द स्टोरी शोज हाउ यूनिटी माइट हेल्प यू टू ओवरकम द टफेस्ट ऑफ सिचुएशंस.
इसीलिए कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो एक कहावत आपने सुनी है, हमारा देश कितना डाइवर्स है, राइट, वी हैव सो मेनी डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड एवरीथिंग, येट वी आर यूनाइटेड, राइट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. दिस family, I mean the family members trust the author and how their faith in him boosts his confidence to fight. तो उनको पता है, उन्होंने अपनी जीवन की बागडोर इस वक्त जो कि खतरे में है ऑथर को दे रखी है. क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं, उन्हें पता है कि ये हमारे भले के लिए करेंगे जो करेंगे. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ योर एटीट्यूड कैन अफेक्ट योर परफॉर्मेंस इन एनी सिचुएशन. तो ये एक लाइफ लेसन है जो इस चैप्टर में आप सीखेंगे. So the narrator of this story is a 37-year-old businessman, and he has a wife whose name is Mary, and they have dreamt, to voyage around the world like the famous Captain James Cook. And for this voyage, they have been, perfecting their seafaring skills. They have been practicing from the past 16 years. 16 साल से वो इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि वो इसको पूरा कर सकें, अपने इस ख्वाब को, अपने इस ड्रीम को. They have got a professionally built 23 meter and 30 ton wooded hull boat wave walker. इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल से एक जहाज बनवाया जिसका नाम वेव वॉकर था. इट वॉज अ वुडन शिप, राइट, एंड इवन द हल, जो उसका बेस होता है, रिब्स होते हैं, वो भी वुडन था, राइट. द बोट हैज बीन टेस्टेड फॉर मंथ्स इन द टफेस्ट ऑफ वेदर्स, इन द रफेस्ट ऑफ वेदर्स. और इस शिप को उन्होंने जो सबसे पॉसिबल खतरनाक सिमुलेशन हो सकता था, टफेस्ट वेदर अवेलेबल हो सकता था, उसमें टेस्ट भी किया था. So they started this journey in July 1976, right? Together with the wife and the kids and the narrator. Together they started this journey. And other than Mary and the narrator, right? There are two kids. One is Jonathan, the son, right? He is 6 years, and the daughter Suzanne, who is 7 years old. दोनों की एज में 1 साल का डिफरेंस था. And they set sail from Plymouth, England. Now the initial period of the 3-year journey, right, from the west coast of Africa to Cape Town, proves to be quite pleasant. तो शुरुआत में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई. इन्होंने प्लाईमाउथ इंग्लैंड से शुरू किया था और वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, टिल केप टाउन, राइट, सब बिल्कुल ठीक रहा, वेदर नॉर्मल था, एंड द वाटर्स वर क्वाइट काम, राइट. एंड बिफोर हेडिंग ईस्ट दे एम्प्लॉयड 2 क्रूमैन. तो ईस्ट की तरफ जाने से पहले इन्होंने 2 लोगों को और लिया अपने हेल्प के लिए, क्रूमैन को, जिसमें से एक लैरी विजिल था, ही वॉज एन अमेरिकन, एंड द अदर वन वॉज हर्ब सीगलर, ही वॉज फ्रॉम स्वीडन, to help them, tackle one of the world's roughest seas, the Indian Ocean, the Southern Indian Ocean. और जो प्रॉब्लम आने वाली थी वो यहीं आने वाली थी सदर्न इंडियन ओशन में, क्योंकि सदर्न इंडियन ओशन काफी फेमस है अपने टेम्पर के लिए, अपने रफ वेदर के लिए, राइट. द सेकेंड डे दे एनकाउंटर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, राइट, एंड अलार्मिंग वेव्स, वेरी हाई वेव्स, गेल्स, राइट. बहुत ही ऊंची हाई क्रेस्ट वाली वेव्स इन्हें दिख रही थी सामने. बाय दिसंबर 25 दे मैनेज टू रीच 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन. तो दिसंबर 25 तक ये कहां पहुंच गए थे, राइट, 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन. केप टाउन के ईस्ट की तरफ गए, 3,500 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके थे. एंड डिस्पाइट द बैड वेदर द फैमिली सेलिब्रेट्स क्रिसमस ऑन द बोट. ऑब्वियसली क्रिसमस दिसंबर 25 है, हर साल क्रिसमस मनाया जाता है, क्रिसमस टाइम था, आई मीन इट वाज अ टाइम ऑफ मेरीमेंट, सो दे एंजॉयड इट ऑन द शिप द वेव वॉकर. हाउएवर द वेदर वर्सेंस विद द पासिंग टाइम. लेकिन जैसे जैसे एक दिन बढ़ रहा था, घंटे बढ़ रहे थे, ये वेदर खराब हो रहा था. इट वॉज गेटिंग अलार्मिंग. नाउ ऑन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ जनवरी 2, दिसंबर 25 को क्रिसमस मनाया इन्होंने. तब से लेके 2 जनवरी के बीच में बहुत ही वेदर खराब हो गया, इट डिटेरियोरेटेड, राइट. एंड द फैमिली फेस स्ट्रॉन्ग माइटी वेव्स, ह्यूज वेव्स एंड स्क्रीमिंग विंड्स, राइट. इतनी तेज हवाएं थी, ऐसा लग रहा था वो चिल्ला रही हैं. स्क्रीमिंग विंड्स, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है. दे अटेम्प्ट टू अटेम्प्टेड टू स्लो डाउन द बोट बाय ड्रॉपिंग द स्टॉर्म जिब. तो एक छोटा एंकर होता है जिसे डाल के इन्होंने जहाज को रोकने की कोशिश करी. एंड देन दे कैरिड आउट अ लाइफ राफ्ट ड्रिल एंड प्रिपेयर्ड देमसेल्फ फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो. और फिर उसके बाद उन्होंने ड्रिल करी, जैसे हम अर्थक्वेक ड्रिल करते हैं, स्कूल में बच्चों को कराते हैं, कभी अर्थक्वेक आ जाए तो उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, ड्रिल कराते हैं. वैसे ही इन्होंने भी एक लाइफ राफ्ट ड्रिल करी कि इन केस ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर कुछ खराब से खराब भी होता है, तो हाउ वी आर गोइंग टू सेव आवरसेल्व्स, राइट, बाय डॉनिंग लाइफ जैकेट्स एंड ऑयल स्किन्स. डॉनिंग मतलब पहनना. तो वो जो लाइफ जैकेट्स थी, ऑयल स्किन्स थी, पानी से बचाने के लिए, और आई मीन इन ऑर्डर टू स्टे अफ्लोट, वो सब इन्होंने करके उसकी प्रैक्टिस करी. लेटर दैट डे इन द इवनिंग अ परफेक्टली वर्टिकल मतलब बिल्कुल खड़ी हुई लहर, जो थोड़ी बहुत भी मतलब नीचे नहीं थी, बहुत ऊंची थी. इट वॉज परफेक्टली वर्टिकल, राइट. ह्यूज ट्रेमेंडस वेव हिट्स द डेक ऑफ द बोट थ्रोइंग द नरेटर ऑफ वेयर द बोट. तो एक जो वेव आई थी, बहुत वर्टिकल वेव थी, वो टकराई डेक से और नरेटर उछल के कहां गिरा, पानी में जाके, राइट. ही वॉज टेकन अनअवेयर्स, उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कब वो टकरा गई. ही एक्सेप्ट्स हिज अप्रोचिंग डेथ.
उसका सर टकराया एंड ही वाज फीलिंग एज इफ ही इज अबाउट टू डाई एंड बिगिंस टू लूज कॉन्शियसनेस, और वो बेहोशी की तरफ जाने लगा। उसे लग रहा था कि बस उसका अंत आ गया है, करीब है, हिज एंड वाज नियर, दिस इज व्हाट ही वाज थिंकिंग, ही वाज गोइंग अनकॉन्शियस। सॉरी, द बोट इज जस्ट अबाउट टू ओवरटर्न, तो बोट कैप्साइज होने वाली थी, कैप्साइज CAPSIZ, पलट जाना बोट का, बोट वाज अबाउट टू कैप्साइज व्हेन अनदर ह्यूज वेव कम्स एंड टर्न्स इट राइट बैक। तभी एक दूसरी तरफ से दूसरी वेव आती है जो उसको पलटने से बचा लेती है और दोबारा सीधा कर देती है जहाज को। एंड द नरेटर ही ग्रैब्स द गार्ड रेल्स, राइट, सेल्स इनटू द बोट्स मेन बूम, तो उसकी गार्ड रेल पकड़ लेता है किसी तरीके से, वो छल के जाता है एंड ही गोज इनटू द बोट्स मेन बूम, ही सफर्स इंजरीज इन हिज रिब्स एंड माउथ, तो उसके चोट लग जाती है कहां पे, रिब्स में, पसलियों में और मुंह में। रियलाइजिंग दैट द शिप हैड वाटर इन इट्स लोअर पार्ट्स, ही इंस्ट्रक्ट्स मैरी टू टेक द व्हील, तो वो कहता है तुम इसका कमान संभालो, ठीक, इसका शिप का, क्योंकि नीचे वाले हिस्से में पानी भरने लगा है। व्हाइल लैरी एंड हर्ब पंप आउट द वाटर, तो जो दो क्रूमैन थे, लैरी एंड हर्ब, दे आर पंपिंग आउट द वाटर, वरना जहाज डूब जाएगा। ही चेक्स ऑन द चिल्ड्रन इन देयर कैबिन वेयर Sue informs him about a bump on a head, right, to which he does not pay much attention. तो वो जाता है देखने कि मेरे बच्चे ठीक है कि नहीं, तो तभी सीयू से बताती है उसकी एक छोटा सा बम था यहाँ पे, गुमड़ा सा पड़ गया था, कहीं टकराई थी, क्योंकि जब जहाज, लहरें आई दो बार, पहले एक लहर आई जिसने जहाज को एक तरफ पूरा टिल्ट कर दिया, इट वॉज अबाउट टू कैप्साइज, जिसमें नरेटर भी उछल के नीचे गिर गया था, फिर दूसरी आई ऑपोजिट डायरेक्शन से जिससे जहाज दोबारा सीधा हो गया। तो उसमें ये जो अपसाइड डाउन हुआ जहाज, उसमें सब अंदर तहस नहस हो गया, जहाज डैमेज भी हुआ, तो बच्चे भी गिरे, उसमें सीयू के यहाँ काफी बड़ा गुमड़ा पड़ गया था, जो एक इंटरनल क्लॉट भी हो गया था उसकी आंख में उससे, राइट। सो वो बताती है, फादर को बताती है, शी टेल्स द फादर, बट ही डज नॉट पे मच अटेंशन टू इट, वो उसको छोटी सी प्रॉब्लम समझ के अभी छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल सबकी जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये उसकी उस हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, राइट। द नरेटर ही बिगिंस वाटरप्रूफिंग द गैपिंग होल्स, अब जो छेद हो गए थे लकड़ी का, क्योंकि पूरी वुडन हल्ड बॉडी थी वेव वॉकर की, तो जहां छेद हो गए थे वो उसकी वाटरप्रूफिंग करने लगता है। मोस्ट ऑफ द वाटर नाउ डिविएटेड टू द साइड, तो जहाज टिल्टेड था, सीधा नहीं था टूटने की वजह से, तो सारा पानी एक तरफ को जिधर टिल्ट था उधर जाने लगा था। हाउएवर देयर हैंड पंप्स ब्लॉक्ड ड्यू टू डेब्री एंड इलेक्ट्रिक पंप गेटिंग शॉर्ट सर्किटेड, तो उनके जो पंप्स थे वो ब्लॉक हो गए थे डेब्री की वजह से। ये डेब्री है, डेब्रिस नहीं है, डेब्री कचरे को कहते हैं, जो मलबा था उससे उनके पंप, उसमें रेत वेत भी भर गई थी, वो ब्लॉक हो गए थे। एंड द अदर वन इट गॉट शॉर्ट सर्किटेड, दूसरा जो इलेक्ट्रिक पंप था उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था। Fortunately, they found a spare, pump, right? A spare manual pump, right? Sorry, electric pump, and he connects it to an out pipe in order to drain out the water. तो उसको वो एक उससे कनेक्ट कर देता है आउट पाइप से, जिससे पानी सारा बाहर ड्रेन होने लगता है। Fortunately, they found a spare, pump. अगर वो पंप नहीं मिलता तो प्रॉब्लम बढ़ जाती। They keep pumping and steering all night long like madmen. पागलों की तरह वो लोग पूरी रात ये पानी बाहर निकालते रहे, वरना क्या होता, द शिप वुड हैव गॉन डाउन लाइक द टाइटैनिक। आपने टाइटैनिक के बारे में सुना होगा, कैसे वो पूरा जहाज डूब गया, इट वाज वेरी ट्रेजिक, राइट। इवन देयर मेडे कॉल्स आर नॉट आंसर्ड एज दे आर इन अ रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और जिस लोकेशन पे वो है यहाँ पे उनकी मेडे कॉल जो है वो कॉल ऑफ डिस्ट्रेस होती है, इट इज अ कोड वर्ड। और जितने भी ये वो होते हैं, कोस्ट गार्ड्स होते हैं, उनको ये कोड देना होता है, मेडे, ठीक, तो उससे उन्हें पता चल जाता है कि इस लोकेशन पे जहां से कॉल आ रही है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम में है, कोई जहाज प्रॉब्लम में है, इट इज अ डिस्ट्रेस कॉल। अब जिस चोट के बारे में स्यू ने बताया था वो चोट बढ़ने लगी, हर हेड सोलन अप, हर आईज हैड गॉन ब्लैक, उसकी आंखें काली पड़ गई थी, क्योंकि वो इंटरनल इंजरी थी, अंदर ब्लीडिंग हुई थी, क्लॉट हो गया था। एंड शी हैज अ डीप कट ऑन आर्म, उसके एक हाथ पे काफी डीप एक गैश था, गैश भी कट को कहते हैं, डीप कट को गैश कहते हैं, GASH। On being asked about her injuries, she replies to her father that she did not want to bother him when he was trying to save them. अब जब बाप पूछता है बेटा तुमने इस कट के बारे में क्यों नहीं बताया मुझे, तो उसने क्या जवाब दिया, कितना अच्छा जवाब दिया उस बच्ची ने कि नहीं पापा, आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऑलरेडी इतने परेशान हैं, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी इस छोटी सी चीज के लिए। दिस इज व्हाट शी रिप्लाइड। नाउ द फैमिली मैनेजेस टू सर्वाइव फॉर 15 आवर्स आफ्टर दिस द वेव स्ट्रक। जब वो लहर टकराई उसके बाद 15 घंटे तक ये लोग अभी तक तो सरवाइव कर गए हैं, राइट। द वाटर लेवल्स आर कंट्रोल टू अ कंसिडरेबल लेवल, और जो वाटर लेवल था वो भी इन्होंने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। वो जो पंप था उससे पानी निकाल रहे हैं बार बार तीनों मिलके, लैरी एंड हर्ब एंड इवन द नरेटर, राइट। बट दे स्टिल हैव लीक्स बिलो द वाटर लाइन,
तो यानी जो शिप का हिस्सा पानी के नीचे सबमर्ज रहता है, इस शेप में होता है शिप, इस शेप में, तो जो नीचे एज पार्ट होता है, जो नीचे रहता है, उसमें अभी भी लीकेज था, उससे पानी पूरा नहीं जा पा रहा था, पानी भरा हुआ था जहाज में। दे डिसाइडेड टू रेस्ट एंड वर्क इन रोटेशन। अब उन्होंने क्या किया, अगर लगातार करते रहेंगे प्रॉब्लम हो जाएगी, सब एग्जॉस्ट हो जाएंगे, सब एक साथ जो है वो लोट लगा जाएंगे। तो उन्होंने कहा हम रोटेशन में काम करेंगे, पहले तुम 2 कर लो, मैं लेट जाता हूं, फिर मैं और ये करेंगे, तुम लेट जाना। दिस इज हाउ दे विल वर्क इन रोटेशन। The wave had left wave walker in a considerably bad state. Obviously, जब 2 बार दोनों तरफ से waves आई, लकड़ी का जहाज था वो टूट गया था, बुरी तरीके से तहस नहस हो गया था, right? It was, in shambles. Okay, since it is not in a condition to make them, reach Australia, the nearest country, they decided and hope to reach what? The nearest island. अब ऑस्ट्रेलिया काफी दूर था, वहां नहीं पहुंच सकते थे, तो जो नियरेस्ट डेस्टिनेशन था वो एक छोटा सा आइलैंड था, रिसर्च आइलैंड, राइट? इट वाज अ फ्रेंच रिसर्च आइलैंड व्हिच वाज कॉल्ड आइल एम्स्टरडैम। इसका प्रोनाउंसिएशन है आइल एम्स्टरडैम, अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। इट वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। अनफॉर्चुनेटली द चांसेस रीच द आइलैंड आर वेरी स्लिम। लेकिन वहां भी पहुंचने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही हल्के थे, वीक थे, स्लिम थे। बहुत मुश्किल था वहां पहुंचना। क्यों? अनलेस द विंड एंड सी सबसाइड और अबेट। अगर ये हवाएं जो चल रही थी, ठीक, और ये जो लहरें थी, अगर ये हल्की हो गई तो पहुंच जाएंगे, वरना वो लोग डूब जाएंगे अगर एक भी लहर और आके टकराई। बिसाइड्स देयर सपोर्टिंग इंजन हैड आल्सो बीन डैमेज। और इनका जो एक सपोर्टिंग इंजन था, एक तो ऑक्सिलरी मेन इंजन होता है, सपोर्टिंग इंजन था, वो भी डैमेज हो चुका था। तो जहाज की मूवमेंट ऑलमोस्ट रेस्ट्रिक्ट हो गई थी। दे वर ओनली रिलाइंग ऑन द मूवमेंट ऑफ द विंड्स नाउ। अब लगभग 36 घंटे हो चुके थे। दे हैव बीन पंपिंग वाटर फ्रॉम द पास्ट 36 आवर्स कंटिन्यूअसली, राइट? दे टुक अ साई ऑफ रिलीफ एज जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर इज लेफ्ट टू बी पंप्ड आउट। पानी लगभग बाहर जा चुका था और जो गैपिंग होल्स थे वो नरेटर ने जो है वो लगभग सील कर दिए थे। किससे किए थे? वो कैनवस जैसी शीट होती है वो एक्स्ट्रा थी, उसको फाड़ फाड़ के उसने और स्क्रूज और जो भी इक्विपमेंट होता है इससे लगा के सील कर दिया था। तो पानी का अंदर आना लगभग ना के बराबर हो गया था, राइट? एंड देन दे डिसाइडेड टू होइस्ट द स्टॉर्म जिब। फिर उन्होंने क्या किया, क्योंकि हवा थोड़ी बहुत थी, तो स्टॉर्म जिब जो होती है, छोटी वाली सेल, एक तो बड़ी सेल होती है, एक छोटी सेल होती है, तूफान उफान में लगाने के लिए, सपोर्ट देने के लिए मेन सेल को, ठीक, वो उन्होंने होइस्ट कर दी। होइस्ट मतलब फहराना, जैसे हम झंडा होइस्ट करते हैं, राइट? एज द मेन मास्ट इज डिस्ट्रॉयड। इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो मेन मास्ट थी, मास्ट वो मेन सेंट्रल पोल होता है जिससे बड़ी वाली सेल लगाई जाती है, ठीक, वो इनकी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो ये हवा का यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी स्टॉर्म जिब लगा सकते थे, छोटी वाली जो सेल होती है, एंड हेड टुवर्ड्स द सपोज लोकेशन ऑफ द आइलैंड। तो अब इनके पास एक ही, दे ओनली हैड वन रिजॉर्ट, यही एक ऑप्शन बचा था कि स्टॉर्म जिब की मदद से किसी तरह ही वहां पहुंच जाए। हैविंग फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्स, दे ईट देयर फर्स्ट मील इन 2 days। 2 दिन में पहली बार इन लोगों ने अब जाके खाना खाया, जबकि सारा पानी निकल गया जहाज से, ठीक। इतना एग्जॉस्ट हो चुके, इतना थक चुके थे। कॉर्न बीफ था इनके पास और कुछ क्रैकर्स थे, वो बिस्किट्स होते हैं, वो सबने थोड़े थोड़े खाए। हाउएवर देयर रिलीफ इज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन थोड़ी देर बाद इन्हें पता चला कि उनका जो रिलीफ था वो बहुत ही कम समय के लिए था। क्यों? द वेदर स्टार्ट्स चेंजिंग फॉर द वर्स एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 5 दे आर अगेन लेफ्ट डेस्परेट। जनवरी 2 को वेव ने इनको जो है इनके जहाज को टक्कर मारी थी, जिसके बाद ये सब डिस्ट्रक्शन हुआ, इनका जहाज पूरा टूट फूट गया। तब से लेके अब तक इन्होंने 2 दिन 36 घंटे तक ये पानी निकाला, ठीक। अब जनवरी 5 था और मौसम फिर से बिगड़ने लगा था। नाउ द नरेटर इज ऑब्वियसली, ही इज नॉट फीलिंग गुड। उसे अच्छा नहीं फील हो रहा है। उसका रीजन ये है कि उसे पता है कि वी कैनॉट गेट आउट ऑफ दिस। उसे दिख रहा है सामने, ही कैन सी देयर इम्पेंडिंग डूम। उसे दिख रहा है कि हम इससे नहीं बच पाएंगे। उसे अपनी मौत दिख रही है, अपनी फैमिली की मौत दिख रही है, राइट। बट स्टिल ही गोज टू द चिल्ड्रन, द नरेटर, टू कंफर्ट देम। उसे पता है बच्चे हैं बेचारे, इन्हें मैं थोड़ा सा दिलासा देता हूं, राइट। बट ही इज लेफ्ट स्पेल बाउंड when he goes there. The little kid, the younger one, Jonathan, right, he is so fearless in the face of this calamity, this catastrophe. वो इतना मतलब मुजाहिरा करता है इस हिम्मत का। क्या कहता है? He says that he does not fear death as long as they are all together. कि डैडी मुझे मौत से डर नहीं लगता, I am not afraid to die. अभी बच्चा है, उसे मौत का पता भी नहीं है, मौत एक्चुअली होती क्या है। But still, whatever he knows from whatever he has seen around in the world, he is saying, I'm not afraid to die if we can all be together. This is the narrator with determination, a newfound determination. इसके बाद नरेटर के अंदर एकदम से एक नई अद्भुत सी एक वो आ जाती है, दृढ़ डिटर्मिनेशन आ जाता है। वो संकल्प करता है कि नहीं,
मुझे अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बचाना है, राइट, एंड ही डिसाइड्स टू फाइट द सी, राइट। यहां पे सी को पर्सोनिफाई किया गया। सी कोई जिंदा चीज नहीं है, इट इज अ नॉन लिविंग एंटिटी, एन इनएनिमेट थिंग। स्टिल ही इज सेइंग ही डिसाइड्स टू फाइट द सी, कि मैं अब इस समुद्र से लड़ूंगा, अपनी फैमिली को बचाऊंगा। नाउ द नरेटर ही ट्राइज हिज बेस्ट टू प्रोटेक्ट द वीक एंड स्टारबर्ड साइड। ओके, स्टारबर्ड साइड क्या होती है, इसके लिए मैं आपको एक पूरी लिस्ट बना के दूंगा। इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपने पहली बार सुने होंगे, राइट। तो स्टारबर्ड, हार्ड स्टारबर्ड, राइट और लेफ्ट होता है, ठीक। एक तरफ को स्टारबर्ड कहते हैं, दूसरी तरफ इवन आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, राइट। एंड दैट इवनिंग द नरेटर एंड हिज वाइफ सिट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। तो उन्हें लग रहा था कि देयर एंड इज नियर, तो वो एक दूसरे का हाथ थामे, दोनों मियां बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ, दे वर सिटिंग फीलिंग होपलेस। ऑब्वियसली समुद्र के बीचों बीच, दूर दूर तक कोई मदद का कोई कुछ नहीं, और बेचारे दो क्रूमैन थे, ठीक, वो भी इनकी हेल्प करने आए थे, उनका भी ये, दे वर गोइंग टू मीट द सेम फेट, उनके साथ भी यही होना था। एंड दे वर थिंकिंग दैट देयर एंड इज नियर, इट इज अप्रोचिंग, राइट। बट स्टिल विद ऑल द मॉरल सपोर्ट दैट ही रिसीव्स फ्रॉम हिज चिल्ड्रन, ही कंटिन्यूज हिज एफर्ट्स। द नरेटर, जो हिम्मत उसे अपने बच्चों से मिली, उसने अपनी एफर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी। बचना ना बचना बात की बात है, ठीक, लेकिन उसने एफर्ट में कोई कमी नहीं करी। फॉर्चुनेटली वेव वॉकर सेल्स थ्रू द स्टॉर्म, वो जो थोड़ा बहुत तूफान आया था, वेव वॉकर इस हालत में भी, इस डैमेज हालत में भी उसको क्रॉस कर गया। ही वर्क्स ऑन द विंड स्पीड्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट देयर एग्जैक्ट पोजीशन। अब उसने जितना भी एक्सपीरियंस किया था, प्रैक्टिस करी थी, उसकी बेसिस पे उसने जो स्पीड थी, विंड की स्पीड थी, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया कि हम किस वक्त कहां पहुंचेंगे, ठीक, किस डायरेक्शन में कितना जहाज को मोड़ना है, स्टारबोर्ड पे मोड़ना है, राइट या लेफ्ट, राइट। व्हाइल ही इज थिंकिंग, Sue gives him a greeting card expressing her love, gratitude and optimism. और जब वो ये सब कर रहा था, कैलकुलेट कर रहा था, आइलैंड एम्स्टर्डम की लोकेशन कैलकुलेट कर रहा था अपनी लोकेशन से, तभी उसकी बेटी आती है Sue, एंड शी ब्रिंग्स हिम अ ग्रीटिंग कार्ड। एक ग्रीटिंग कार्ड लेके आती है, और उसमें उसने दिखाया होता है कि वो कितना प्यार करती है अपनी फैमिली से। शी इज फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड एंड ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी। वो उम्मीद देती है, उम्मीद की किरण देती है अपने फादर को, अपने बाप को। एंड फॉर्चुनेटली they sail on and manage to find Isle Amsterdam ultimately by the same day in the evening, right? On being informed about this, the narrator's joy knows no bound. उसकी आंख लग गई थी, right? He had dozed off. इतना थक चुका था, चोट भी लगी हुई थी, right? और hopeless भी था, उसकी आंख लग गई थी। He had, dozed off. तो जब उसको उठा के बताया गया, बच्चों ने, डैडी वी हैव फाउंड द आइलैंड, वी हैव फाउंड द आइलैंड, हिज जॉय नोज नो बाउंड। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ही वाज ऑन क्लाउड 9, इस बात की खुशी कि उसने अपनी फैमिली को बचा लिया है। दिस वाज, व्हाई ही वाज सो हैप्पी। जोनाथन कॉल्स हिम द बेस्ट कैप्टन। नाउ यू सी द ब्यूटी एंड यू सी हाउ द ऑथर मस्ट हैव बीन फीलिंग द नरेटर। कितनी खुशी होगी उस बाप को, का बेटा उससे कह रहा है, डैड यू आर द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड and the best daddy in the entire world, right? Such an emotional, dialogue, from the end of the kid. Soon they get offshore and struggle to reach the island with the help of its inhabitants. फिर वो बड़ी मुश्किलों से offshore, मतलब उतरते हैं, उससे डिसएम्बार्क करते हैं जहाज को, टूटे फूटे जहाज को, राइट। एंड दे स्ट्रगल टू रीच द शोर विद द हेल्प ऑफ द इनहैबिटेंट। इनहैबिटेंट्स रहने वाले आइलैंड पे जो लोग थे, उन्होंने मदद करी, किसी तरह वो मुश्किलों से उतर के किनारे पे आ गए, बीच शोर पे आ गए। स्टेपिंग ऑन द लैंड आफ्टर सच टर्मोइल फिल्स द नरेटर्स थॉट्स विद चीयरफुलनेस एंड ऑप्टिमिज्म। और इतने दिनों बाद जमीन पे पैर रखना, भी तो पानी में थे, जमीन का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। देयर वाज नो साइन ऑफ लैंड एनीवेयर, दे वर इन द मिडल ऑफ nowhere, in sea, in the ocean, right? And now finally when they landed, when he set foot on land, he was very happy and he was filled with positive thoughts, right? Joy and optimism. Larry and Hub Siegler, supportive Mary, a brave 7-year-old girl who did not want her parents to worry about head injuries, and a 6-year-old boy who is not afraid to die, right? This is what this story is made up of, right? इन दो छोटे बच्चों की, वैसे तो सारे कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दो बच्चों की जो हिम्मत दिखाई गई है इसमें, दैट इज कमेंडेबल, राइट? एंड दे होल्ड अ वेरी पाइवटल रोल इन दिस एंटायर डिस्क्रिप्शन, इन दिस एंटायर स्टोरी. सो दिस वाज, I have tried to keep it crisp, the explanation of this chapter. I'm also going to provide you with a list of all the terms which are, used in these terms used by the sailors, right? ये nautical उसमें जो यूज होते हैं टर्म्स आपके, वो मैं उसकी लिस्ट प्रोवाइड करूंगा. Till then, you have a good day. Hasta la vista.